सत श्री अकाल जी सारे नूं। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ 4 ਮਈ 2025 ਸ਼ਿਫਟ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ HS ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 36 यानी 36 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 36 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40 - 4/6 अंडर द क्यूब 216 इंटू रूट 25 ਦਾ 20% बराबर वाई। इस क्वेश्चन ਵਿੱਚ एरर सी, वैसे ਆਪਾਂ देख ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। यानी 40 - 4/6 इंटू जो 216 ਦਾ 1/क्यूब ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਆਊਗਾ। रूट 25 ਦਾ 5 ਦਾ 20% यानी इंटू 20/100 बराबर आ गया वाई। ਹੁਣ देखो सारे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 20 × 5 = 100, 5 ਨਾਲ 5 ਕੱਟ ਗਿਆ, 6 ਨਾਲ 6 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ 40 - 4 = 36। यानी इसका आंसर ਸੀਗਾ 36। ਇਹ ਗਲਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन नंबर 37 ईशा ਤੇ ਅੰਜੂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ 50,600 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 6600 ਦੇ ਕੁੱਲ ਲਾਭ ਵਿੱਚੋਂ ਈਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2700 ਸੀ। ਅੰਸ਼ੂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਅੰਸ਼ੂ, ਹੁਣ ਈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਈਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਅੰਸ਼ੂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ? 50,600 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6600 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਈਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2700। ਈਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? 2700। ਤੇ ਅੰਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ 2700 ਘਟਾਵਾਂਗੇ 6600 ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 3900। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਈ ਦੇ ਤੇ ਏ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ। ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ? ਅੰਸ਼ੂ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ। 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ ਗਏ, ਤੇ 3 ਦੇ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 9, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 13। ਤਾਂ 9:13 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 50,600 ਟੋਟਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 50,600। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 50,600 ਨੂੰ ਬਟਾ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 13 ਤੇ 9 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 22 ਇੰਟੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਿਵੇਸ਼ ਅੰਸ਼ੂ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 13। 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 11, 2 ਦੇ ਪਾੜੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ 25, 3 0 0। ਹੁਣ 11 ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਭਾਗ 11 × 11, 11 ਦੂਣਾ 22, 3 ਬਚ ਗਏ, 11 ਤੇ 33, 0 0। 13 ਨੂੰ 2300 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, 2 0 ਵੈਸੇ ਦੀ ਵੈਸੇ, 13 × 3 = 39, ਸਲਾਈ 3, 13 ਦੂਣਾ 26, 26 ਤੇ 3 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 29। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2900, 29,900 ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38 ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 38 क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं ਆਪਾਂ। विजिबल है ना? हाँ। विजय ने 10 kg चौल 37 रुपये पर kg ਨਾਲ ਅਤੇ 37 kg ਚੌਲ 44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ kg ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਰਣ 42 ਰੁਪਏ ਪਰ kg ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस देख लेंगे, फिर देख लेंगे आप सैलिंग प्राइस की है। तो देखो सब तो पहले 10 kg चौल सी उसनू किन्ने च खरीद ले
10 kg चौल ਨੂੰ 37 रुपये 'ਚ। ठीक है, ये तो पहली खरीद होगी। दूजी खरीद की सी 37 kg चौल ਨੂੰ 44 रुपये करती है। तो 37 kg चौल है 44 रुपये के हिसाब ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ जोड़ की होगा अपने को सारा कॉस्ट प्राइस होगा। हम देखो 37 कॉमन आ रहा, तो 10 ਤੇ 44 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 37 कॉमन आ जाऊगा। 37 इंटू ये कितने हो गए 54। तो आ अपने को आ गया सारा कॉस्ट प्राइस। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस देख ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਕੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ 42 kg 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ 10 kg ਚੌਲ ਸੀਗੇ, 37 kg ਚੌਲ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਚੌਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 47 kg ਇੰਟੂ ਵੇਚਿਆ ਕਿੰਨੇ 'ਚ 42 ਨਾਲ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ। ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 37 ਇੰਟੂ 54 ਤਾਂ विजिबल है ना। 7 चौक 28 लिख लो, तो 7 5 35 लिख लो। 7 5 35 तो 4 ते 12 35 तो 45 45 तो 2 47 45 तो 2 हो गई 47। देखो 8 आ 2 इधर चलो 49, 4 इधर चला गया तो कितना आ गया 5 थी 15 होंगे 8 49 4 गई तो 19। तो इन्हों का गुणा आ गया 1998। इन्होंने दोनों देख लें आप कितना हुआ 7 दूनी 14 4 चौका 16। हम इन्हों का क्रॉस मल्टीप्लाई है 4 दूनी 8 तो 7 चौक 28 28 तो 8 कितने हो गए 36। देखो एक डिजिट इतनी एक इतने आंसर जाऊगा 37 हो गए, 3 इधर जाएंगे 1974। तो हम देखो 1998 चो 1974 कटाने हैं तो कितना बचूगा 4 ते 2, यानी आंसर किया हुआ आंसर नंबर अपना ए है वो सही है कि है 24। हम आप अगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेंगे आप। एक स्टोर एक त्यौहार सीजन के दौरान 2 छूटा की पेशकश करता है, जिस विच लगातार 2 छूटा वजों पहली 15% और फिर कटाई गई कीमत ते 5% छूट मिलती है। जेकर एक जैकेट का अंकित मूल 4000 है तो दोनों छूटा लागू करने तो बाद इसका अंकित वेच मूल्य कितना होएगा। यानी ये परसेंटेज दी डिस्काउंट तो सवाल है। यानी अपन कितना देता है 4000 देता है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। तो इससे पहला दी है 15% की छूट, फिर दी है 5% की 15% की, फिर दी अपन 5% की छूट। देखो 15% की छूट दूंगा तो वैल्यू कितनी बच जूगी 85%। ठीक है, फिर मैं 5% की छूट दूंगा तो वैल्यू कितनी बच जूगी 95, बचू कितनी 95। बस इन्हें सॉल्व करना। देखो 2 0 नाल 2 0 नाल 2 0 तो 1 0 नाल 1 0 तो इस करांगे 2 ते भाग 5 देंगे 2 नाल तो 2 5 एकम 5 19 5 95। देखो 19 दूना 38 85 नू करना है 38 नाल गुणा, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो 8 5 40 2 डिजिट नू गुणा करना है 8 3 24 5 3 15 तो 8 8 64 64 ते 15 64 ते 15 कितने हो गए 79 0 7 4 83 8 24 ते 8 32 यानी 3230। आंसर नंबर किया गया सी। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। हम आप देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 40। बिल्कुल इजी प्रश्न आए हैं, कोई ज़्यादा औखे है नहीं गे, एक बार प्रैक्टिस की लोड़ है बस। तो हम देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन आप 40 अनुपात फिर समानुपात 50 फिर अनुपात y। देखो जेकर आ 10 अनुपात 50 समानुपात 50 अनुपात y है तो y का मूल्य पता करो। तो y का मूल्य तो समानुपात का की होंगे ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ 10 ਨੂੰ y ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 10 × y ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਦੇ 50 × 50
देखो 0 नाल 0 कट गई, y बराबर कितना आ गया 5 5 25 0, तो आंसर आ गया 250। ठीक है, हुण आप अगला देख लेंगे सवाल नंबर 41। ਹੁਣ ਆਪਾਂ सवाल नंबर 41 देख लेंगे हैं। दो टूटियाँ एक नूं क्रमवार 19 घंटे एंड 10 घंटे विच भर सकदियां हन। तीजी टूटी इस 14 घंटे विच खाली कर सकती है। जेकर सारियां टूटियां इकट्ठे खोलियां जाण तो खाली टंकी नूं भरन विच कितना समा लगेगा। हुण देखो 17/54 17/54 17/54 17/54 ये ऑप्शन है, तो बस सिर्फ आप यही देखना है बी आऊगा 21 आऊगा 12 आऊगा या 14 आऊगा। तो सब तो पहले देखो, पहला ए है, मान लेने ए टूटी है वो 19 घंटे भरती है, बी टूटी है जी वो 10 घंटे भरती है, सी टूटी है जी 14 घंटे खाली कर दी है। तो एक नैगेटिव निशाने से लाया है क्योंकि ये खाली कर रही है। हूँ इन्हों का एलसीएम लेना होंगे, एलसीएम की होंगे अबाज्य संख्या का गुणनफल। तो देखो 19 इंटू 1 14 ले लो, तो देखो 2 कॉमन है तो इन्हों चों 5 ले लो। 19 नाल 19 डिवाइड करांगे तो अपन वो 14 5 70, 10 नाल डिवाइड करांगे 10 नाल डिवाइड करांगे तो 7 19 7 133 आ गया, क्योंकि 10 नाल डिवाइड करांगे तो इस संख्या अनुसारी 5 नाल कट्टा जाऊगा, 2 नाल करके तो 19 7 133 आ जाऊगा। 14 का करांगे तो 19 5 95, यानी ये टोटल एफिशिएंसी है। अगर जे आप तिना टंकियां खाली छड़ एकदम छड़ देंगे तो ये दोनों तो ऐड होणगियां। 3 7 3 10 ती 0, आंसर 1 यानी 203 माइनस होगा 95, कितना बचूगा देखो 100 हो जाती है तो कितने बचते 103, 5 और जुड़ गए तो कितने हो जाएंगे 108। तो अपने को फाइनल की निकल गया होगी एफिशिएंसी 108 है जी, वो अपना 108 है। हुण जी वो अपने को टोटल एफिशिएंसी है। तो टोटल जी अपने को वर्क है या जोड़ा कह सकते हैं टैंकी जो पानी भरदा लीटर है वो अपने को 19 इंटू 14 इंटू 5 है। तो देखो 19 इंटू 14 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 108, तो 2 नाल कटिए तो 7, 2 नाल कटिए तो 54। हम देखो हम अपन सिर्फ इधर डिवाइड ही करना पड़ा क्योंकि कोई कटता रहा नहीं, बिल्कुल कोई कटता रहा नहीं, तो इसलिए की करना पड़ा डिवाइड। तो हम 19 5 95 19 5 95 इंटू 7 या 7 5 35 7 5 35 इंटू गुणा करके देख लेंगे 7 5 35 इंटू 19। देखो 9 5 45 वही तरीका 3 9 3 27 5 27 5 कितनी होंगी है 27 5 होगी 32। देखो 5 36 4 गए इधर 36 3 3 6 3 3 6 यानी 665 बटा 54। हम ध्यान नाल देखो कि ऑप्शन च अपने को बी है 21 है 12 है 14 है। तो देखो अपन ऑप्शन नाल भी कर सकते हैं, यानी जे 10 ते जाऊगा तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 540, अगर 20 ते जाता तो कितनी आ जी 1080, अगर आप 20 नाल मल्टीप्लाई कर दे तो 1080 यानी 665 इतने तो इतने 180, यानी बी वाले ऑप्शन गलत हो गए दोनों वाले। हम 12 ते 14 रहे, देखो 10 ते जाऊँगा तो 540 तो हो ही जाऊगा। अगर आप देख दें इनू 54 54 कितने होंगे 108, तो 108 ऐड कर लो 8 4 6 648 यानी लगभग करीब आ गया। तो ऐड करांगे 17 यानी 17 जोड़े शेषफल बचे हुए 7 8 56 7 8 15 आंसर 1 5 1 6 665 आ रहे। तो अपना आंसर नंबर सी सही है। तुम पा करके भी देख सकते हो, बट ऑप्शन ना करे ना चीज़ा आसान हो जाती। ठीक है, हम देखते हैं आप अगले क्वेश्चन पर चल रहे। ये क्वेश्चन इंग्लिश सीगा, अपने इसमें इंग्लिश ही देख लेंगे। हम देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42वां। विजिबल है हाँ।
एन आर्टिकल कोस्ट 200 यानी उसका कोस्ट प्राइस 200 है। सिंपल दस देना। मार्केट प्राइस कितना है 108 मतलब 1080। वट इज़ द प्रॉफिट परसेंट इफ द सेलर गिव 70% डिस्काउंट देने तो बाद में यानी उसने उस सेलर ਨੂੰ कितना प्रॉफिट होगा। एंड सिंपल दस रखे कि कोस्ट प्राइस कितना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 42 कोस्ट प्राइस दे रखे हैं 200 विजिबल है ना। मार्केट प्राइस है अपने को 1080 तो मार्केट प्राइस ते आप देनी है छूट यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा ही मार्केट प्राइस ते होंदा है तुहानूं पता ही है 1080। डिस्काउंट कितनी है 70% की तब बचू कितना 30%। जो 70% की डिस्काउंट होंदी है तब बचा हुआ कितना होगा 30%। 0 नाल 0 0 नाल 0 हुण 8 ते 24 3 कम 3 यानी वस्तु का सैलिंग प्राइस कितना आ गया 324। कॉस्ट प्राइस है 200। प्रॉफिट कितने का हुआ 124 का 200 घटावांगे बटा 200 इंटू 100 0 नाल 0 कट गया 2 इंटू 6 और 2 62% की आ गया था प्रॉफिट आ गया। ठीक है हम आप अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 ये बिल्कुल आसान ही है बस जवाकां नूं जान नहीं दिता है। तो देखो ये पहला आप बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहला आप ब्रैकेट सॉल्व करना होंगे। तब ब्रैकेट वाली संख्या केड़ी है 19 इंटू 3 19 तिया 57। ठीक है गुणा हम देखो 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू इन्होंने दोनों सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ 4 बटा 4। फिर की सॉल्व करना होंगे क्योंकि ये तो सॉल्व हो ही गया। हम इस करेंगे 5 बटा 5 कर देंगे इंटू 4 बटा 4 4 नाल 4 कट गया 5 नाल 5 कट गया तो आंसर किया गया अपना 57। ठीक है हाँ एक आ क्वेश्चन है ये थोड़ा जहा हार्ड लेवल का आया है इलैक्शन वाला तो नवे पेजे ते कर लेंगे। चलो आप क्वेश्चन नंबर 44 है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 98% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट एंड 20% ऑफ वोटर पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। विनिंग कैंडिडेट वोट मतलब कि 75% मिले वोटर एंड इलेक्शन जित गया 294 वोटा नाल यानी 100% ਜਿਹੜੇ कैंडिडेट सी उन्होंने 98% ਤਾਂ रजिस्टर होए हैं तो ਜਿਹੜੀਆਂ वोटा पोल हुई उन्होंने 20% ਜਿਹੜੀਆਂ वोटा है वो ਕਿਹੜੀਆਂ इनवैलिड फाउंड हुई। फिर ਜਿਹੜਾ विनिंग कैंडिडेट आ वो वैलिड वोटा का 75% ਜਿਹੜਾ वो लैके आया। हम देखो भी मान लें वोटा अपने को X ठीक है उन्होंने 90% कितनी हुई है रजिस्टर। तो आपको की पूछे रजिस्टर वोटा हाउ मैनी वोटा रजिस्टर यानी रजिस्टर सी वोटा X 98 रजिस्टर वोटर कास्ट देयर वोट यानी 98 ने तक की कराया वोट पाई अपनी। ठीक है फिर उन्होंने की है 20% जड़ियाँ वोटा है वो इनवैलिड हो गई यानी रजिस्टर वोटा का 20% इनवैलिड हो गया तो बचियाँ किनिया 80%। हुण देखो 80% वोटा जड़ियाँ बचियाँ सीगियां ये किहड़ियां सी वैलिड। हुण वैलिड वोटां विचों 75% तो मिल गए विनर नूं ते जिहड़ा लूजर होगा उन्होंने कितने मिलणगे वो जिहड़े वैलिड वोटां दा उन्होंने बच गए 25%। एंड दिता है कि जिहड़ा है 294 वोटां नाल ही जित गया यानी इन्हां दा अंतर कितना हुआ 50%। वो किहदे बराबर हुआ 294 दे। हुण देखो 80% का 50% यानी 50 बटा 100 बराबर की 294 दे। बस इन्हें सॉल्व करना है अपना आंसर आ जाऊगा 50 2 हो गया 1 0 नाल 1 0 2 1 2 4 आ गया। हुण देखो तो 10 मिनट आप आगे चलते हैं विजिबल है ना। हाँ
देखो x बराबर 294 इंटू 100 इंटू 10 बटा 98 इंटू 4। बस सिंपल है, 2 ते गया, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 1 7 दूनी 14। तो हम देख लेंगे आप 7 ते दईए, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 14 7 98, 7 दूनी 14, 7 ते 21। तो हम जाइए 4 ते, तो 2 ते गया कितना है 5, 2 ते गया 50, 5 5 25, 25 ते 75, 75 ते 1 0 750, यानी टोटल रजिस्टर वोटा कितनी अपने को 750, यानी आंसर नंबर ए सही है। हम आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 45। विजिबल है ना क्वेश्चन नंबर? हाँ। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 1 2 3 नेचुरल नंबर इज। सब तो पहले देखो भी नेचुरल स्क्वायर जी आप निकाल देंगे ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਕੁਏਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ n n+1 2n+1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ n n+1 2n+1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6 ਇੰਟੂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦਾ। n ਨਾਲ n ਕੱਟ ਗਿਆ, अपने को यह फॉर्मूला n+1 2n+1 बाई 6। n की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन 1 2 3 यानी 123 दे रखी है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन 123। तो देखो 123 रखांगे तो 124 बन जूगा इंटू 2 नाल गुना करेंगे 2 4 6 247 बटा 6 डिवाइड करेंगे 10 6 दूनी 12 2 दूनी 4 यानी 62 इंटू 247 डिवाइडेड बाई 3। बस ਇਹਦਾ ਹੀ आंसर है। इनू कैलकुलेशन ही करना है और ये कुछ नहीं है। बस इन कैलकुलेटिव दिता है, इनू आंसर करोगे तो तुम देखो भी ज़्यादा तुम कैलकुलेशन नहीं करनी है। पॉइंट के बाद 6 7 ही है, पॉइंट के बाद 6 7 ही है, 6 7 6 7 6 7 5 1 5 1 5 1 5 1 0 आ रहा है 3 5 6 7 बस 3 तो ही है अगे। तो बस इनू मल्टीप्लाई करके तो इसनू कर देना, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं गा। तो यदा आंसर आ जूगा 5104.8। जो कैलकुलेशन करूँगी तो आंसर आराम देने आ जू, पर ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं देखते। हम आप क्वेश्चन नंबर देख दें, विजिबल है ना क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर आ गया अपने को 46। विजिबल है ना? हाँ। एक काम 17 दिनों में करता है, बी उसनों 19 दिनों में पूरा करता है। जेकर वो पहले दिन बी तो शुरू करते हैं, बदलवें दिन काम करते हैं तो काम किन्ने दिनों में पूरा होगा। देखो ये 17 दिनों में, बी करता है 19 दिनों में। स्टार्ट कौन करता है? बी, यानी बी स्टार्ट करता है। लघुत्तम की होंगे इन्हों का यह वाज्य संख्या का गुणफल। 17 डिवाइड करांगे तो 19, 19 डिवाइड करांगे तो की आ जाएगा 17, यानी इन्हों की आ एफिशिएंसी बन जूगी। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 17 34 ते 36 जोड़ आ जाएगा। तो इन्हों का 17 इंटू 19 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 289 इंटू 34 मल्टीप्लाई करके देख लो तुम। 9 4 13 अंश लिख 9 3 12 2 अंश लिख 3 यानी 323। 323 डिवाइड करना है 36 नाल। देखो स्टार्ट कौन करता है? बी, यानी पहले दिन की लगूगा बी, सैकेंड डे आऊगा ए, यानी दोनों मिलके 2 डेज विच कितना काम करनगे 36, यानी 36 की एक बन गई साइकिल। साइकिल कह सकते हैं आप भी, एक सर्कल बन गया, साइकिल बन गई 36 की। हम देखो
323 ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਦਾ ਭਾਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਲਗਭਗ 8 ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। 323 ਤੇ यानी 36 ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 8 ਨਾਲ डिवाइड कर दिया 8 6 48 4 8 3 24 24 ਤੇ 4 28 288 9 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 324 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ ਯਾਨੀ 8 ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 36 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 288 यानी 288 कम 8 ਦੇ ਨਾਲ 8 ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है यानी डे किन्ने हो जानी 8 दूनी 16 डे। रिमेनिंग कितना बचूगा 323 माइनस 288 कितना बच गया 12 ते 12 बच गई 304 ते 12 ते कितनी हो गई 5 ते 3 35। हूँ जिमें अगला दिन हुआ उमें की करूँगा 20 काम करूँगा यानी 20 17 काम कर दूँगा। ठीक है 10 17 काम करे तो बचो कितना 18 तो हूँ अपने को 16 ते 17 17 सही 18/19 अपना आंसर आ जाऊगा। एक बार रुको देख लेने आप तो देखो जिमें कि 36 दिन इतों तक तुम देख लिया होना 36 × 8 मतलब कि 288 वर्क हो चुके अपना। रिमेनिंग कितना रह गया टोटल कितना है 323 रिमेनिंग कितना रह गया 223 चों अगर आप 288 घटावांगे तो अपने को बचूगा 35 डेज। हूँ देखो 36 तो घट है यानी दोनों आप साइकिल नहीं बना सकते तो हूँ की स्टार्ट करूँगा बी आऊगा फर्स्ट डे कितना कम करूँगा 17 यानी एक डे आ गया 17 कम बने। सैकेंड डे कम कितना बच गया 35 चो 17 घटा बचे कितना 18 ए डिवाइडेड बाई ए करांगे 19 की ए दी एफिशिएंसी 19 है तो अपने 16 दिन हो सके 17 सही। ਹੁਣ ਆਪਾਂ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अदिति ने अपना स्कूटर 33,240 ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਦਾ 1/6 लाभ प्राप्त होया लाभ प्रतिशत पता करो। देखो सेलिंग प्राइस कितना है 33,240 प्रॉफिट कितना आया प्रॉफिट अपना सेलिंग प्राइस का 1/6 यानी 33,240 का 1/6 1/6 कितना हुआ 6 कम 6 6 5 30 3 बच गई यानी 32 हो गई 6 5 30 2 बच गई 6 चौका 24 0 यानी प्रॉफिट होया 5540। तो हम कॉस्ट प्राइस की मिलना हुआ देखो 33,240 तो 5540 माइनस कर दो क्योंकि सेलिंग प्राइस जो ये लाभ घटा देंगे तो अपन की होगा कॉस्ट प्राइस 0 0। तो हूँ इतने आंसर आऊगी 13 12 ते 2 7 5 12 8 ते 3 5 गए तो कितने बचनगे 13 चो 5 गए तो 8 13 चो 5 गए तो 8 5 13 होंगे तो कितने आ गए 28,700। हूँ आप ज्ञात करना की है 7 इतने 12 बचने ना 7 आ जाए 277। तो हूँ आप ज्ञात करना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 5540/2770 इंटू यानी प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इंटू 100 0 ਨਾਲ 0 कटा गया 277 लूना 554 होंगे ही तुम्हें पता ही है पता कि 27 दूना 54 ते 2 गुना च बैठा है तो 20% किया गया प्रॉफिट यानी सी है जोड़ा अपना सही है। हम देख लेंगे आप क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 अपने को हाँ ये बिल्कुल आसान सा सवाल ही है कोई ज़्यादा औखा है नहीं ये बस 1/7 तो मूल्य ज्ञात करना मूल्य पता करना अपन। देखो 14 लघुत्तम ले लो सारे का इतने 7 है इतने 14 है तो 2 बच गए 2 का मल्टीप्लाई हो जाऊगा फिर इतने 2 का मल्टीप्लाई हो जाऊगा 8 फिर इससे कोई मल्टीप्लाई नहीं
फिर इस 2 नाल मल्टीप्लाई हो जाए जो एलसीएम लवांगे आप तो 14 है, उत्ते कुछ नहीं है तो मतलब ये ऑप्शन आप एक मान सकते हैं। तो 14 नाल मल्टीप्लाई जो हो जाएगा कि आ जाऊगा 28। हूँ इन्हों जोड़ लो बस 8 से 10 12 12 4 कितने होंगे 16 16 माइनस 28 यानी 28/14 कितने बच गई 100 2 1 12/14 माइनस दी 2 नाल कट लो 6/7 यानी अपना आंसर किया गया बी, ऑप्शन नंबर बी। हम आप अगे सवाल देखते हैं कितना कुछ रहेगी। क्वेश्चन नंबर 49 बिल्कुल आसान ही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो 8 संख्यावां का औसत है 19। मान लेने आप 8 संख्यावां केड़ी हैं यानी x1 x2 x3 डॉटेड डॉटेड x8 डिवाइडेड बाय 8 एवरेज कितना देता है 19। इन्हां विचों 5 संख्यावां का औसत कितना है 12। बाकी संख्यावां का एवरेज कितना है 5 संख्यावां का औसत दिता अपन 12 यानी x1 तो लेके x5 तक का एवरेज कितना है यानी x1 x2 प्लस डॉट 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 x5 तक यानी 5 संख्यावां का कितना है 12। तो हुण जे आप इन्हां दी वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसनूं इस नाल गुणा कर दो कितना आ जाऊगा 60। पर बाकी 3 संख्यावां का एवरेज पता करना है। ये आ गया अपने को वैल्यू बस एच रखो 60। 5 संख्या तो आ गया x6 x7 x8 बटा 8 बराबर कितना हुआ 19। तो हुण इहनूं मल्टीप्लाई कर दो x6 x7 x8 संख्या आई गई अपने को प्लस 60 सीगा 19 8 कितने होंगे 9 8 72 7 8 7 15 19 8 152 60 उधर लेके जाओगे तो माइनस आ जाओ x7 x8 60 घटावांगे तो 2 6 घटावांगे 15 विचों कितने बचणगे 9 यानी 92। आप इन्हां दा एवरेज ज्ञात करना है तो संख्या कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 10 तो 30 पॉइंट लगभग 6 7 के आसपास आ जाए। देखो ऑप्शन नंबर ये अपन दे रखे हूँ आप देख लें। अगला कुछ सवाल क्वेश्चन नंबर है 50 मूलधन ते 2 साल की 5% सालाना दर ते SI 674 है। तो मूलधन पता करो अपन पता ही होंगे भी SI की होंगे P × R × T बटा 100। हम देखो SI कितना दे रखे है 774। मूलधन अपन पूछे रेट कितनी है 5% इंटू टाइम है 2/100 5 2 10 10 में 10 कट गया यह मल्टीप्लाई हो जाएगा 7077 यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो गया। हम आप अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की कहना अपन शुद्ध घ्यो की कीमत 110 रुपये kg है जिस विच 55 किलो बनस्पति तेल की मिलावट करने तो बाद एक दुकानदार मिश्रण 91 पर kg की दर से बेचता है जिस नाल उसनूं 30% का लाभ होंदा है। वह दोवां नूं किस अनुपात विच मिलाउंदा है। देखो पहला शुद्ध घ्यो है 110 रुपये kg ते फिर इसनूं 55 kg वाले ते मिलाउंदा है। एलीगेशन का सवाल है। फिर इसनूं 91 ते बेचता है तो उन्हें 30% का प्रॉफिट होंदा है। देखो 91 ते बेचण नाल 30% का प्रॉफिट होंदा है तो ये वस्तु की 130%। अगर आप ज्ञात करना हुआ यानी इन्हों मिलाए तो कितना मिलता होगा मतलब एक्चुअल वैल्यू तो आप 130 नाल डिवाइड करना 100 नाल गुणा 0 नाल 0 कटे 13 7 91 कितना आ गया यानी 70 यानी एक्चुअल जो मिलाया गया एक्चुअल वैल्यू सी 70। हम देखो 110 से 70 कटाई कितने बचे 40 कटाई कितने बचे 15 इन्हों का रेशियो अपन पूछे दोनों का किस अनुपात में मिलाया जाता है। 5 नाल डिवाइड करांगे 3 5 नाल डिवाइड करांगे 8 3:8 तो अपना आंसर आ गया 3:8। अगला सवाल देखते हैं जेकर किसी संख्या का 40%
इस दे 20% तो 96 ਵੱਧ है तो संख्या गत करो। संख्या मान लेंगे भी x अपने को, ठीक है। x का 40% x दे 20% तो कितना ਵੱਧ है 96 ਵੱਧ है। बस इसमें सोल्व करना है, सिंपल होता है। इस नूं इधर लेके आवांगे तो 40 विचों 20 कटाई किन्ने बचणगे 20 बचणगे, बराबर कितने हो जाए 96 दे डिवाइड करा 5, 20 5 100 होंदा ही, 5 नाल गुणा हो जाएगा 6 5 30 9 5 45, अरे 6 5 30 6 5 30 आंसर 3 9 5 45 ते 3 48 480 आंसर आ जाए। सॉरी गुणा मिस्टेक ली। तो हम देखते हैं आप कॉम्प्रीहेंशन है जोड़ा जिसते 3 सवाल बन गए। एक सवाल थोड़ा जहा टफ है तो बाकी बिल्कुल ईजी है। देखो एक बार श्री शर्मा की महीनावार आमदन 75,000 है। वह आमदन का 30% किराए थे, 20% करियाने थे, 15% आवाजावी थे, 10% उपयोगितावां ते खर्च करता है, बाकी बचाता है। देखो बचाने का आप परसेंटेज इतने देख लेंगे 30%, 20%, 50, 60, 70, 75 यानी 25% वो बचाता है, ठीक है। तो सब तो पहला सवाल है किस क्वेश्चन नंबर 53 जेकर श्री शर्मा अगले साल अपनी आमदन में 12% वाधा करते हैं 12% वाधा करते हैं आमदन में 12%, पर उन्होंने खर्चा उही रहिंदा है तो नवी बचत थोड़ा जहा हम देख ध्यान नाल सुनने वाली गल है। इन्होंने आमदन कितनी दे रखी अपन 75,000, वादा कितना हो गया 12% का, 12% कढ़ांगे फिर वो 75,000 से जोड़ांगे तो डायरैक्ट कर सकते आप 112/100, 0 नाल 0 कटा गया तो इन्हों की आमदन आ गई 75 × 112 आ इन्हों की आमदन आ गई एक्चुअली। पर उन्होंने खर्चा उही रहिंदा तो नवी बचत खर्चा कितना रहिंदा उही रहिंदा है। खर्चा कितना है 75,000। देखो 25% बचत कर दे तो खर्चा कितना आ गया 75%, 0 नाल 0 कटेगा तो हम 0 75 का स्क्वायर कितना जूगा 5 5 25 7 8 56, यानी ये इन्होंने खर्चा हो गया 75 का स्क्वायर होंगे 56 25, 0 आएगी। हम ये है खर्चा उन्होंने आए आमदन उन्होंने जी नवी, बस इन मल्टीप्लाई करके इनू माइनस ही करना। आप देख लें कि 75 100 गुणा करनी 0 था वैसी पड़ी रूम 5 10 आंसर 1 5 1 6 5 0 7 में 14 1 7 1 8 7 कितनी आ गई 0 0 5 10 1 9 5 14 आंसर 1 यानी 84,000 उन्होंने तनख्वाह होगी। ये 56,250 हो गया इन्होंने खर्चा। आमदन आ जूगी अपने को 7 13 9 10 यानी 5 7 7 2 यानी 27,750 रुपये अपन आ गया अपने को। इन्हों जोड़ा है वो नवी बचत आ जूगी। हम देखो श्री शर्मा की महीनावार बचत कितनी है। देखो सैलरी कितनी है इन्होंने को श्री शर्मा की महीनावार बचत आप देख ही ली सी कितनी सी 25%, तनख्वाह कितनी है 75%, तब 75,000 था 25%, 25 कम 25 25 चौका 100 4 का डिवाइड करना बस अपन को महीनावार तनख्वाह जुगी। 4 एकम 4 3 बच गए 8 चौक 32, 3 बच गई 7 चौक 28, 2 बच गई 5 चौका 20, 18,750 यानी आप महीनावार तनख्वाह है। हम आ गया किराए अते आवाजावी ते खर्च। किराए अते आवाजावी ते खर्च कितना होंदा है। देखो स्टार्टिंग किराए ते 30%,
ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ 15% ਕਿੰਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ 30 ਤੇ 15 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 45%। ਤਾਂ 75,000 ਦਾ ਕਿੰਨਾ 45%। 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ ਗਈ, 1 0 ਬਚ ਗਈ। 75 ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ 45 ਨਾਲ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ। 5 5 25, 7 चौक 28, 7 5 35 ਤੇ 20, 35 ਤੇ 20 हो गए 55। देखो 0 तो सी 5 आ गया, एक रकम 57, 28 5 33। देखो 33 750 यानी आंसर नंबर सी। बिल्कुल हौली हौली नाल देखना, फिर तुहानूं आसानी नाल समझ आ जाऊगा। थैंक यू। इस तरह की वीडियो देखने लाइक शेयर सबसक्राइब करो चैनल में। थैंक यू।